So, friends, we know that very well in this chapter, units and dimensions. We have covered total 6 parts. In the last, that part, that means in last lecture, we discussed solution of 10 most time questions. So, today we move in forward direction. Those students who are, we can say that observing first time this lecture, they can also understand because today we would like to think something new. Dimensional analysis already we have discussed. We can also connect this portion with dimensional analysis. But friends, today's lecture very end, units and dimensions part 7. Today we would like to think about the conversion of units from one system of units to, we can say that, other system of units. What is this? We'll discuss, don't worry. So just concentration required. You can see we have idea about physical quantity. So whatever the happenings, we can say that around us, it can be represented in the form of physical quantity. But friends, you know that very well, to measure physical quantities, we have required units. So units are very important. For example, you know that very well, time. अपन लोग बिंदास बोलते हैं कि अरे आज तो मुझे ये काम करने में 2 घंटे लगे, 2 hours. Hours, you can see that. 2 represent numerical value, but hours represent time. कुछ लोग बोलते हैं अरे आज तो मैं बहुत थक गया, 5 किलोमीटर चल के आया. 5 न्यूमेरिकल वैल्यू, फॉरगेट अबाउट इट. बट किलोमीटर सिंपली रिप्रेजेंट डिस्टेंस. So to represent physical quantity or to measure the physical quantities, you know that units required. And there are, the different units, particularly for different systems. How can we say concentration required? There are, you can see that what do you mean by system of units? So system of units, that means a complete set of units for all kind of physical quantities. All kinds of physical quantities, that means fundamental, derived, all kinds of physical quantities. What are the complete set of units for all kinds of physical quantities? It is called system of units. So friends, I have represented here a table. You can see that. इसको याद रखने की कोशिश करने की, हो सके तो ठीक है, वरना आप आज इसमें मास्टर बनने वाले जो, डोंट वरी. So this is common systems I have represented in this table. So by using this tabular form, we can deal with 4 total systems for the units. Number 1, MKS. You can see that MKS first, then CGS second, then FPS third, and number 4th SI. So what do you mean by MKS? It is, you know that very well, meter, kilogram, second. So if you represent here, I will write first of all first physical quantity, length. And there is, you know that, mass, and then time. So here quantity, here unit, system of, you can see that unit start. First of all, we would like to think about length. So what is the unit of length in MKS system? M representing meter, so obviously unit of length meter. So what is the unit of length in CGS system? Centimeter, gram, second. Here meter, kilogram, second. So here centimeter, you can see. Ready? Centimeter. Write in good manner, you can see centimeter. Now FPS, it is called foot pound second system. So what is the unit of length in the foot pound second system? Foot अपन लोग मेजर करते हैं आपके घर में, मगर अपन लोग प्लूरल सिंगुलर में लोचे मारते हैं. आपके घर में आपके पेरेंट्स कभी कभार डिस्कस करते हो कि ये दीवार 5 फुट की है या ये इतना डिस्टेंस 5 फुट, 5 फीट, यू नो दैट. 5 फुट नहीं, 5 फीट, तो फुट वो फुट है. You can see that. So what is the unit of length in MKS? Meter. In CGS, centimeter. In FPS, foot. And now what is the unit of mass in MKS? So mass का होगा kilogram. While here only you can see that gram. What is the unit of mass in CGS? Gram. And here pound. You can see that इतने pound weight में measure करते हैं. Now time. So second, and second. So friends, we have discussed 3 basic quantities: length, mass, and time in a different system of units like MKS system,
CGS, FPS. Fourth one we will discuss later. So you can see, if you observe very carefully, one quantity remains constant for each and every system. For example, length and mass continuously changes, but think about time. तो ये फिजिकल क्वांटिटी का हर एक सिस्टम में सीन चेक करो, सेकंड सेकंड सेकंड. क्यों? क्योंकि ये पूरे वर्ल्ड में एक जैसी क्वांटिटी है, वो किसी के बाप से चेंज नहीं होती है. टाइम, नो, nobody can, you can see that change the time, or we can say that keep time, you can see that constant. जबरदस्त टाइम है, उसके साथ कोई बंदा छेड़खानी नहीं कर सकता. इसलिए आज से याद रखना, टाइम का यूनिट कोई भी सिस्टम में बिंदास कांस्टेंट ही रहेगा. वो फिर एमकेएस सिस्टम हो, सीजीएस सिस्टम हो या एफपीएस सिस्टम हो, बट डोंट वरी, यूनिट ऑफ टाइम रिमेन्स कांस्टेंट. Only you have to focus on length and mass. So what is the unit of length in MKS? Meter. What is the unit of length in CGS? Centimeter. In FPS? Foot. And what is the unit of mass in MKS? Kilogram. Here in CGS gram, while in FPS pound. So what do you mean by SI? The last system, very latest one, System International. It is an extended version और फॉर्म ऑफ एमकेएस. एमकेएस का थोड़ा एक्सटेंडेड वर्जन है, यू नो दैट वेरी वेल. तो एसआई लेटेस्ट है, जो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को साथ में लेके चलते हैं, अपन लोग जानते हैं. तो फ्रेंड्स, ये टेबल है ठीक ठाक, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि दिमाग में आ ही जाएगा. लेंथ एमकेएस के ऊपर से पता चली जाए, मीटर, सीजीएस में ऑलवेज सेंटीमीटर. आपको एफपीएस का भी टेंशन लेना नहीं है. जो धूम मचेगी वो ये दो के बीच में मचने वाली है. इसलिए मैं ऐसे फुल्ली फालतू में टाइम आपको बिगाड़ने नहीं देने वाला हूँ. आपको सिंपल ये दो ही याद रखना, एमकेएस, सीजीएस. उसमें भी दोनों में टाइम तो सेम ही रहेगा. अब बचा दो ही क्वांटिटीज, वो है जिसे कह सकते हैं कि मास एंड लेंथ. तो अब अपन लोग कन्वर्जन जरा देखते हैं. सो जस्ट कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड हियर, एमकेएस टू सीजीएस. सपोज वी वुड लाइक टू कन्वर्ट, दैट मींस गिवन फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम एमकेएस टू सीजीएस. यानी आपको कोई क्वांटिटी है, वो दी है एमकेएस में, उसको आपको कन्वर्ट करना है सीजीएस में. यानी कि एमकेएस में से सीजीएस में जाना हो तो किलोग्राम है, वो बन जाएगा 10⁻³ ग्राम. 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 10⁻³ ग्राम. 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻² सेंटीमीटर. सेकंड इज इक्वल टू 10⁻0, क्योंकि 10⁻0 यानी 1. सो 1 सेकंड, इधर 1 भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल. ये तो खड़ी पीली नहीं रखना है, ऐसे लगते, देखो, नो प्रॉब्लम एट ऑल. So very interesting point about this 2 point. kg is the unit of mass in MK system. Now we have converted mass in the form of CGS. If 1 kg is equal to 10⁻³ ग्राम, तो देखो kg का कन्वर्जन हो गया ग्राम में. अब kg ग्राम में आ गया, मतलब ये बन गया CGS. इसी तरह मीटर is the unit of length. So length, what is the unit of length in MKS? It is 1 meter. You would like to represent centimeter, that means you would like to convert meter in the form of centimeter, then you have to convert like in this way. 1 meter is equal to 10⁻² centimeter. तो MKS में से CGS में जाना हो तो दो ही जगह छेड़खानी करेंगे, किलोग्राम टू ग्राम और मीटर टू सेंटीमीटर. मगर ये लोग कभी कभार उल्टी गंगा बहाते हैं, यानी कि CGS to MKS. So now think about CGS to MKS. That's why I written here धूम, क्योंकि ये तो इजी है. ये लोगों को प्रॉब्लम होता है. इवन अभी 12th के क्लास में जाके भी कुछ स्टूडेंट्स को पूछो, इधर ये पॉइंट आता है तो काफी स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं. तो फंडामेंटल याद रखो, CGS टू MKS. सो CGS, सपोज वी वुड लाइक टू थिंक अबाउट मास. सो व्हाट इज द यूनिट ऑफ मास इन CGS सिस्टम? इट इज ग्राम. सो 1 ग्राम. आई वुड लाइक टू कन्वर्ट दिस 1 ग्राम इनटू द फॉर्म ऑफ MKS सिस्टम. सो व्हाट इज द यूनिट ऑफ मास in MKS? Kilogram. So 1 gram is equal to, anybody, 1 gram is equal to how many kg? It is, you know that very well, 10⁻³ kg. याद रखो, kg टू ग्राम. अगर आप हायर टू लोअर यूनिट में जाते हो तो पावर पॉजिटिव आएगा, और अगर आप लोअर टू हायर यूनिट में जाते हो तो पावर नेगेटिव. इतना याद रखने का है. हायर टू लोअर पावर पॉजिटिव, लोअर टू हायर पावर नेगेटिव. देखो, ग्राम लोअर यूनिट है, केजी
you know that higher, so lower to higher than negative power. So 1 gram 10 raised to minus 3 kg and 1 सेंटीमीटर, तो अपन लोग जानते हैं सेंटीमीटर लोअर है, मीटर हायर है, सो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू ब्लैंक मीटर, ऑब्वियसली 10 रेज़ टू 2 इस साइड, सो -2 मीटर। काफी लोगों को ये समझ में नहीं आता है, समझ में नहीं आता मतलब याद नहीं रहता है, इवन 12th वालों को भी सेंटीमीटर टू मीटर में कन्वर्ट करना मुश्किल हो जाता है। सो वेरी आईएमपी, सो फ्रॉम टुडे 1 ग्राम इज इक्वल टू 10 रेज़ टू माइनस 3 kg एंड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 रेज़ टू माइनस 2 मीटर। टाइम के साथ अपन लोग अभी कोई छेड़खानी नहीं करते, तो इतने कंसेप्ट आपके पास हो तो आज अपन लोग यही पॉइंट के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो पोर्शन में डिस्कस करने वाला हूँ, पहले मैं बहुत ही सिंपल मेथड से सोल्व करूंगा A to Z, उसके बाद हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस वाली मेथड भी देखेंगे। जहां तक मुझे लगता है, तो मुझे लगता है कि आज जो अपन लोग मेथड डिस्कस करने वाले हैं वो थोड़ा इजी रहेगा। काफी स्टूडेंट्स को डायमेंशनल एनालिसिस थ्रू भी ये कन्वर्जन करते हैं, मगर वो मुझे थोड़ा टिपिकल लगता है। सो मैं इजी में मानता हूँ, तो अपन लोग पहले इजी वाली देखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में अपन लोग डायमेंशनल एनालिसिस भी देखेंगे, डोंट वरी, वी विल डिस्कस डायमेंशनल एनालिसिस आल्सो टू कन्वर्ट सिस्टम ऑफ यूनिट्स, और आई कैन से दैट यूनिट्स फ्रॉम वन सिस्टम टू अदर। फिर आपको तय करना है, जो अच्छा लगे वो आप यूज कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, बहुत बेसिक क्वेश्चन से शुरू करते हैं, सो बी अलर्ट अबाउट इट। ओके, ये सब कुछ है वो आपको डिस्कशन किया है, आपको इसमें से जो याद रखने वाला फंडा है वो इधर पड़ा है, डोंट वरी। सो बहुत ही पकड़िए जैसे क्वेश्चन से शुरू करता हूँ मैं। सो वी स्टार्ट विथ, वी कैन से द फर्स्ट क्वेश्चन। आपको ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू ब्लैंक केजी पर मीटर क्यूब। सो देखो, ग्राम सेंटीमीटर, this is simply you can see that CGS. So kilogram meter, that means now you know that very well MKS. So one point is clear, we would like to convert this 10 gram per centimeter cube, that is this physical quantity, from CGS to MKS. तो बता रहा हूँ, ऐसा हर बार सोचना नहीं, डायरेक्ट शुरू देखो, स्टार्ट 10, पहले लिख दो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 का 10, देखो जस्ट। अब ग्राम को मुझे केजी में कन्वर्ट करना है, सो 1 ग्राम इज इक्वल टू हाउ मेनी केजी। सो ग्राम की जगह देखो, नाउ जस्ट कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड, इंस्टेड ऑफ ग्राम आई कैन राइट हियर 10 रेज़ टू माइनस 3 kg। बिंदास पूरा उठा के रख देने का, फिर ग्राम का पावर क्या है 1, तो इधर पावर 1 दे देने का बिंदास, अपॉन सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, अपने को मीटर में जाना है, 10 रेज़ टू माइनस 2 मीटर, तो पूरा लिखी दो 10 रेज़ टू माइनस 2 मीटर। व्हाट इज द पावर ऑफ सेंटीमीटर क्यूब? सो हियर वी हैव टू सेट अप क्यूब। रेडी? 1 ग्राम 10 रेज़ टू माइनस 3 kg, 1 सेंटीमीटर, बट इन डिनोमिनेटर, सो डिनोमिनेटर 1 सेंटीमीटर 10 रेज़ टू माइनस 2 मीटर, मगर सेंटीमीटर के ऊपर क्यूब, तो क्यूब इधर सिंपल छाप काम ही करना है कन्वर्ट करने के बाद। सो देखो 10 हियर 10 रेज़ टू माइनस 3 kg लिखो बिंदास, अपॉन 10 रेज़ टू माइनस 2 का क्यूब, तो माइनस 2 3 जा माइनस 6। इधर जरा ध्यान रखना है, काफी स्टूडेंट है 10 रेज़ टू माइनस 2 का क्यूब कर देते हैं 10 रेज़ टू माइनस 8। हाईली इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, 2 क्यूब नहीं है ये, सिंपल ऐसा होता तो जिसे कह सकते हैं खाता, मगर हियर पावर ऑलरेडी, सो 3 2 जा 6। मगर देखो मीटर का भी क्यूब करने का है, मीटर क्यूब, तो अब इसको सिंप्लीफाई करना आना चाहिए। सो 10 के ऊपर 1 पावर इधर -3, तो 1 - 3। पहले तो अपन लोग क्या करते हैं कि 1 - 3 यानी -2, और ये 10 रेज़ टू माइनस 6 को गुलाटी मार के ऊपर भेज देते हैं। कोई भी पावर डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर में जाए या न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर में आए, आप जानते हो उसका पावर है वो नेगेटिव में से पॉजिटिव हो जाए, पॉजिटिव में से नेगेटिव, तो इधर नेगेटिव है तो इट्स बिकम पॉजिटिव, और जो बचा हुआ है वो तो लिखने का केजी पर मीटर क्यूब। ऑटोमेटिक आंसर आएगा, देखो -2 + 6 दैट मींस 4। सो योर आंसर आई कैन राइट 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 रेज़ टू 4 kg पर मीटर क्यूब। इन शॉर्ट, वी हैव कन्वर्टेड दिस क्वांटिटी फ्रॉम CGS to MKS। वेरी IMP, यू कैन सी दैट। तो CGS में जो रोल 10 होगा, वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू 10 होगी, वो MKS में कितनी बन जाएगी 10 रेज़ टू
4. Most IMP. So this is, you can see that your first question we discuss. ऐसा ही में एक क्वेश्चन है, वो आपको लास्ट में होमवर्क में देता हूँ, पहले अपन लोग एक कदम आगे बढ़ते हैं. रेडी? वो टेबल याद रखना है. और मैंने कहा ज्यादातर यही CGS टू MKS ज्यादा पॉइंट आएगा, डोंट फॉरगेट. MKS टू CGS बहुत कम. और जो क्वेश्चन मैं इधर सोल्व कर रहा था उसको उसी दिन नोटबुक में रिवाइज हो जाना चाहिए. देखो सेकंड क्वेश्चन है, वो आपको ट्राई करना है. ये 10 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड इज इक्वल टू ब्लैंक ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड. क्या करना है आप जानते हो. वीडियो लेक्चरिंग में अपना फंडा अलग है, बाकी सब जगह चलता है उससे. सिंपल आपको वीडियो पॉज करना है और अभी सोल्व करना शुरू करना है. टेक योर टाइम. ओके, आपने ट्राई की होगी. अब आप जिसे कह सकते हैं अपन सोल्व करते हैं. सो हियर 10 यू कैन सी दैट केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड टू ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड. यानी अपन लोग देखे 10 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड. पहले 10 का 10. चलो 1 केजी इज इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम. 1 केजी दैट मीन्स 10⁻³ ग्राम. देन 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻² सेंटीमीटर. मैंने बोला यूनिट के साथ ही लिखो. मीटर का स्क्वायर तो इधर भी स्क्वायर अपॉन यू कैन सी हियर सेकंड में कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं. बिंदा सेकंड टू सेकंड. ओके फ्रेंड्स, नाउ 10 here 10⁻³ ग्राम and here 10 square or square, so 2 2 जा 4, so 10⁻⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये सेंटीमीटर का भी स्क्वायर होगा. तो लिखे 10⁻³ सो आंसर आएगा 10⁸ ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड. यू कैन सी. सो दिस इज योर आंसर 10⁸. इन दिस fill in the blank. What's your answer? 10⁸. So we have converted MKS to CGS. Okay, one more. अब जो क्वेश्चन है बहुत ही इंटरेस्टिंग. सो यू हैव टू अप्लाई योर लॉजिक. पहले अपन बेस बनाएंगे, धीरे धीरे टिपिकल क्वेश्चन को सोल्व करेंगे. चलो, इफ वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, क्वेश्चन है इफ द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर इज ब्लैंक मीटर क्यूब, सॉरी ब्लैंक mm क्यूब. चलो ये नया, ब्लैंक mm क्यूब. चलो ट्राई करो. वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब आपको दिया है, उसका लेंथ ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर है, तो उसका वॉल्यूम मुझे mm क्यूब में चाहिए, मिलीमीटर क्यूब में चाहिए, नॉट मीटर क्यूब. तो थिंक अबाउट इट. चलो वंस अगेन पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व इट. बाकी मैं अभी सॉल्व करवाता हूँ. आपको क्या करना है, वीडियो पॉज करने के बाद अपने आप ट्राई करनी है. थोड़ी देर के बाद वीडियो फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे बढ़ाओ, चेक करो. ओके, इधर क्यूब. सो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर. तो अपन लोग तो जानते हैं वॉल्यूम का फॉर्मूला LBH. क्यूब हो तो L क्यूब, यू नो दैट. तो इधर L यानी कितना है, 1 सेंटीमीटर. सो 1 सेंटीमीटर का क्यूब. रेडी? तो चलो पहले तो सेंटीमीटर को mm में कन्वर्ट करना है, तो वो भी मैं इधर दे रहा हूं, जरा देखो अच्छी तरह. सो 1 किलोमीटर यानी 10⁻³ मीटर. फिर अपन लोग जानते हैं 1 मीटर यानी 10⁻² सेंटीमीटर. फिर अपन लोग जानते हैं 1 सेंटीमीटर यानी कि 10 mm. चलो ये आगे. रेडी? इतने 3 चीजें याद रखने के लेंथ के लिए. 1 सेंटीमीटर 10⁻1 mm. अब उल्टा जाना है, देखो सेंटीमीटर टू mm. अभी अपन लोग में mm जाना है. सो 1 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर की जगह अपन लोग रख देते हैं 10 mm. क्यूब का क्यूब कर देते हैं. सो फाइनली यू कैन सी दैट इसका क्यूब करो तो 10 क्यूब mm क्यूब एंड दिस इज योर आंसर. अगर ये क्वेश्चन जिसे कह सकते हैं मीटर क्यूब में पूछा हो तो फाइंड इन टर्म्स ऑफ मीटर क्यूब. चलो, तो मीटर क्यूब में जाना हो तो वापस वॉल्यूम तो 1 सेंटीमीटर क्यूब है, बट 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर. यू कैन सी दैट 1 सेंटीमीटर. देन हियर आई हैव टू राइट 10⁻² मीटर क्यूब. तो 10⁻² का क्यूब होगा 10⁻6 मीटर क्यूब. सो दिस इज द वॉल्यूम in terms of मिमी यानी कि mm क्यूब, and this is the volume in terms of मीटर क्यूब. मिलीमीटर यानी mm क्यूब
इन ईयर मीटर क्यूब, इतना फर्क होगा देखो। तो ये यूनिट्स सब चकाचक चाहिए। सो दिस इज ऑल्सो वेरी आईएमपी। चलो वन मोर, तो मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, ट्राई करने का है आपको। ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वापस मैं बता रहा हूँ उसी तरह जाना है। वीडियो पॉज करो, अपने आप ट्राई करो, जो बंदा वो करता होगा उसी को फायदा होगा। आप वीडियो अपने आप देख रहे हो दोस्तों, कुछ जगह पे मैंने देखा है कि पेरेंट्स है वो अलग होते हैं, आप आइसोलेटेड जगह पे हो और अपने आप डिस्टर्बेंस ना है इसलिए वीडियो ऑब्जर्व कर रहे हो। तो काफ़ी स्टूडेंट्स दिल से पढ़ते हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स जो इंस्ट्रक्शन यहाँ से दी होती है उसको 100% फॉलो करते हैं। अगर आपने वीडियो पॉज करके जो भी क्वेश्चन दिया है वो सोल्व किया है नहीं किया, ऑनेस्टी के साथ वर्क किया कि नहीं किया, वो फ्रेंड्स ऑलवेज दो बंदे जानते हैं, एक आप और एक ऊपर वाला, आपका गॉड। वो सब लिख रहा है आपकी डायरी में कि आपने कितना ऑनेस्टी अप्लाई किया। तो फ्रेंड्स अपनी डायरी में सब अच्छा लिख सको ऐसा काम करना है, डोंट फॉरगेट। तो अप्लाई करने का, और फिर इधर रेफरेंस तो है, क्वेश्चन है देखो, व्हीकल इज मूविंग, a vehicle is moving with speed 18 kilometer per hour, then what is the distance traveled by it? Chalo, this is your target, but what is the distance traveled by it? We can say that what is the distance traveled by it? ब्लैंक मीटर इन 1 सेकंड। चलो ये आपका क्वेश्चन है। व्हीकल की स्पीड दे दी है 18 किलोमीटर पर आवर, तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, कितना मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा 1 सेकंड में। व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रैवल बाय व्हीकल इन 1 सेकंड बट इन टर्म्स ऑफ मीटर। वंस अगेन पॉज योर वीडियो बट वी विल ट्राई टू सॉल्व इट। अब आप देखो, आपको स्पीड ऑलरेडी दे दी है और आपको फाइंड करना है डिस्टेंस। सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन आए तो स्पीड यानी v 18 किलोमीटर पर आवर। सो पहले 18 का 18 किलोमीटर को अपन लोग पहले मीटर में कन्वर्ट कर दें। सो 18 इंटू वी कैन से दैट 1000 मीटर, 1 किलोमीटर 1000 मीटर। 1 आवर इज इक्वल टू हाउ मेनी सेकंड्स? ऑब्वियसली 3600 सेकंड, क्योंकि 1 आवर यानी 60 मिनट्स और 1 मिनट यानी 60 सेकंड्स। तो ये याद रखने का, 1 आवर 3600 सेकंड्स फ्यूचर में बहुत बड़े पैमाने पर यूज होने वाला है। तो ये दोनों गए, 18 2 जा 2 5 जा, इन शॉर्ट आंसर होगा 5 मीटर पर सेकंड। देखो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया, आर को सेकंड में कन्वर्ट किया। ओके, इसीलिए मैं देखो सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट लिखता हूँ हर बार, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर एंड 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकंड। ऑटोमेटिकली मीटर पर सेकंड आ जाएगा। देखो, so here what is the speed now in terms of meter per second? It is 5 meter per second. So what is the meaning of this 5 meter per second? That means distance traveled by vehicle in 1 second, it is per second का मतलब है in 1 second it is how many meter? 5 meter। तो 1 सेकंड में 5 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। मोस्ट टाइम भी ऐसे क्वेश्चन ये लोग पूछे उसमें थोड़ा चेंज करेंगे। मैं एग्जाम में क्वेश्चन पूछूं तो थोड़ा माइनर चेंज करके पूछूंगा। सो बी अलर्ट, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग केस। वंस अगेन किलोमीटर इज कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ मीटर एंड आर इज कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ सेकंड। ये खास तय करना, क्योंकि जो नेक्स्ट चैप्टर होगा अपना मोशन इन 1D, इसमें किलोमीटर पर आवर यूनिट देंगे और आपको ऐसे एमकेएस में जाने का होगा। सो बी अलर्ट। ओके फ्रेंड्स, वन मोर। मैंने बोला आज का पूरा जो पोर्शन है अपन लोग इसमें रहने वाले, इसकी प्रैक्टिस करके मास्टरी लाने की है। चलो आपको एक क्वेश्चन दिया है, व्हीकल इज मूविंग विथ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। व्हीकल इज मूविंग विथ स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर, देन डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय व्हीकल। आपको ये फाइंड करना है, होमवर्क में दे रहा हूँ। डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय व्हीकल इन 2 सेकंड इज ब्लैंक मीटर। होमवर्क। चलो मैंने बोला इसके जैसा जैसा चेंज हो सकता है। नाउ यू थिंक अबाउट नेक्स्ट। चलो, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। दिस इज, यू कैन सी दैट न्यू क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन यू हैव टू सॉल्व इन होमवर्क। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर इज ब्लैंक मीटर क्यूब। चलो ये सोल्व करने का।
ये भी होमवर्क, वॉल्यूम ऑफ क्यूब ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर इज ब्लैंक मीटर क्यूब। वंस अगेन ये भी होमवर्क ट्राई करने का है। चलो ये तो होमवर्क में भी थोड़ा देखते हैं, ये नेक्स्ट लेक्चर में अपन लोग ट्राई करेंगे वापस सॉल्व करने की। अब आपको जिसे कह सकते हैं कि मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ और ट्राई करना है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू ब्लैंक किलोमीटर पर आर स्क्वायर। चलो स्टार्ट। ये कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वी हैव टू कन्वर्ट इन किलोमीटर पर आर स्क्वायर। सो फ्रेंड्स स्टार्ट। 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 3 का 3 मीटर, but we would like to convert meter in the form of kilometer. So 1 meter is equal to how many kilometer? तो देखो मीटर स्मॉलर यूनिट, किलोमीटर लार्जर। वी आर मूविंग फ्रॉम लोअर टू हायर पावर नेगेटिव। ना पता चले तो थोड़ा इधर लिखो 1 किलोमीटर दैट मीन्स 10⁻³ मीटर। अब 10⁻³ को धक्का मार दो, सो 1 meter is equal to 10⁻³ kilometer. So instead of 1 meter now 10⁻³ किलोमीटर। मैंने बोला जो यूनिट है उसके बदले पूरा यूनिट लिख के लिखो। मीटर के ऊपर पावर कितना है 1, तो इधर भी पावर 1 अपॉन यू कैन सी दैट सेकंड स्क्वायर। मगर इधर सेकंड को आर में कन्वर्ट करना है, ये जरा इंटरेस्टिंग देखो। 1 आर इज इक्वल टू हाउ मेनी सेकंड 3600 सेकंड। तो अपने को सेकंड चाहिए तो पहले इसको भेज दो इस साइड। सो 1/3600 आर इज इक्वल टू सेकंड। तो ये कन्वर्जन आपसे याद रखने का, 1 सेकंड इज इक्वल टू 1/3600 आर। तो अपन लोग इधर सेकंड की जगह रखेंगे 1/3600 आर और उसका भी स्क्वायर। तो स्क्वायर देखो ये टिपिकल बनने वाला है क्वेश्चन, सो ये याद रखना है। अब इसको अपन लोग सोल्व करें तो 3 × 10⁻³ किलोमीटर, ये रहा किलोमीटर। अब ये 3600 है, डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में तो गुलाटी मार के ऊपर, तो इसको अपन लोग लिख दे 3600, उसका भी जिसे कह सकते स्क्वायर, और अपन है अपॉन 1 × आर स्क्वायर। तो फाइनल आंसर होगा 3 × 10⁻³ 3600 स्क्वायर किलोमीटर पर आर स्क्वायर। इसको सोल्व करके आंसर लाओ, वो आंसर रेडी जो मोस्ट प्रोबेबली जिसे कह सकते हैं कि आंसर है 38880 किलोमीटर पर आर स्क्वायर। तो फ्रेंड्स ये भी अच्छा क्वेश्चन, मगर ये कन्वर्जन धांसो, तो आज से ये याद रखने का है मोस्ट IMP 1 सेकंड इज इक्वल टू 1/3600 आर। सो एनालाइज फ्रेंड, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके नाउ विल थिंक अबाउट वन मोर। अब जो क्वेश्चन है वो आपको जिसे कह सकते हैं कि मैं होमवर्क में दे रहा हूँ अगेन, यस, क्योंकि वो आपको ट्राई करना है। फिर अपन लोग थोड़े टिपिकल क्वेश्चन में, सो ये होमवर्क में ट्राई करना है। 10⁻² ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू ब्लैंक kg मीटर स्क्वायर प्लस सेकंड स्क्वायर। होमवर्क, चलो ये भी आपको ट्राई करना है, मोस्ट IMP। ओके चलो ये मैं सोल्व करवाता हूँ क्योंकि ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, सो जस्ट कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड। ये 10⁻² ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। फ्रेंड बराबर देखना अच्छी तरह। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 10⁻² का 10⁻², चलो पहले आता है ग्राम। ग्राम को कन्वर्ट करना है kg में, ग्राम टू kg, लोअर टू हायर, पावर नेगेटिव। सो 1 ग्राम इज इक्वल टू 10⁻³ kg, पावर ग्राम का 1 तो इधर भी 1। अब आता है सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर। सो सेंटीमीटर की जगह आएगा 10⁻² मीटर, बट व्हाट इज द पावर ऑफ सेंटीमीटर 2, तो इधर भी 2 रख दो। अपॉन सेकंड, सेकंड का सेकंड स्क्वायर ही हो बिंदास, बराबर। अब इसको सोल्व करें, सो 10⁻², 10⁻³ kg, और इधर 10⁻² दैट मींस 10⁻⁴, बट मीटर स्क्वायर, देखो इसका भी स्क्वायर और मीटर का भी स्क्वायर।
तो 10 raised to minus 2, 10 raised to minus 3, 10 raised to minus 4. Just check it. What happened here? 10 raised to minus 2, 10 raised to minus 3, 10 raised to minus 4. So 10 raised to minus 9 kg meter square per second square. You can see this is your simple answer. So just check it. This is very interesting question we have discussed. तो इंटरेस्टिंग यानी ये सब क्वेश्चन पूछेंगे तो अब कैसे कोई बोले ऐसा पूछेंगे, यस ऐसा पूछेंगे नहीं, ऐसा पूछ चुके हैं। तो मैं आपको एक क्वेश्चन अब दे रहा हूँ जो आपको जिसे कह सकते हैं कि नीट जेडबल बेस बन सके। इसलिए तो मैं पहला क्वेश्चन देता हूँ जो जिपमेर में पूछा हुआ है। जिपमेर यानी कि जो जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल है उसके रिलेटेड है। सो जिपमेर और ऑलरेडी नीट में भी पूछा हुआ है 1993 में। सो इफ डेंसिटी ऑफ वुड, जस्ट कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड, डेंसिटी ऑफ वुड इज 0.5 ग्राम पर सीसी। ये सब सीसी देंगे, सीसी के बाद में बताता हूँ, ग्राम पर सीसी in CGS, then what is the density in, we can say that then what is the value, corresponding value of density in MKS is blank। चलो, यानी ये जो वैल्यू डेंसिटी की CGS में है उसको MKS में कन्वर्ट करके फाइंड करो। सो विल राइट हियर डेंसिटी इज इक्वल टू 0.5 ग्राम। ये जो सीसी उसको कहते हैं सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि सेंटीमीटर का क्यूब। देखो ये या क्यूबिक सेंटीमीटर, मोस्ट IMP क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये याद रखने का। तो अब इसको कन्वर्ट करना आपको आता है। 0.5 ग्राम की जगह क्या करेंगे, केजी। सो 1 ग्राम 10 raised to minus 3 kg अपॉन 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 raised to minus 2 मीटर बट क्यूब। तो क्यूब करना जरूरी। अब इसको सिंप्लीफाई करें, 0.5 10 raised to minus 3 kg को धीरे से साइड में लिख दो। 10 raised to minus 2 का क्यूब यानी 10 raised to minus 6 और मीटर का क्यूब इधर लिख देता हूँ। देखो रेडी, तो केजी पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट हो गया, यानी MKS आ गया ऑलरेडी। अब ये मसाला है उसको जरा सोल्व करना है। तो सबसे पहले नेगेटिव पावर ऊपर जाए तो प्लस, तो 0.5 10 raised to minus 3 10 raised to plus 6, डोंट फॉरगेट केजी पर मीटर क्यूब। व्हाट इज द सिंप्लीफिकेशन ऑफ दिस, -3 + 6, सो 0.5 10 raised to 3, यानी कि इधर से 10 हटाओ तो आंसर आएगा 500। ना पता चले वो देखे, 0.5 into 10 raised to 3, so 5 upon 10 into 10 raised to 3, एक 10 cancel, so 5 into 10 raised to 2, that means 500 kg per meter cube। that's your answer। तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी आई कैन से दैट जिप में जो मेडिकल इंस्टीट्यूट रिलेटेड और नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन 1993 मोस्ट टाइम। चलो एक आध और ऐसा मैं क्वेश्चन देता हूँ ताकि आपके फंडे बने। ओके, जस्ट मिनट फर्स्ट। तो देखो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया। एक और क्वेश्चन में अभी आपको बता रहा हूँ जिसे कह सकते हैं कि ढूंढने के बाद, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन हो तो अपन लोग सोल्व करें। ओके, अब देखो आपको कैसा क्वेश्चन पूछेंगे जो थोड़ा जिसे कह सकते हैं कि टिपिकल हो सकता है और कन्वर्जन वाइज हो सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन में सिंपल कन्वर्जन है वो किस तरह पूछेंगे वो जरा देखो। तो क्वेश्चन में दे रहा हूँ, नो डाउट क्वेश्चन विथ मी। ओके, द सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड, सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड इज 70 dyne per centimeter। then in MKS system it is blank,
यानी सरफेस टेंशन ऑलरेडी गिवन इन CGS। अब दोस्तों ये जो डाइन है वो आप फर्स्ट टाइम डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए सबसे पहले मैं ये डाइन का फंडा बता देता हूँ। इधर देखना, मोस्ट IMP। पहले तो आपको दिमाग में, जो लोगों का दिमाग तेज तरह चलता होगा उसको पता चल गया होगा कि डाइन जो यूनिट है कौन सी फिजिकल क्वांटिटी के साथ एसोसिएट होगा। एनीबॉडी? तो आप में से काफी लोगों का दिमाग जो तेज तरह चलता होगा वो पहले तो सरफेस टेंशन का फॉर्मूला चेक करें। सरफेस टेंशन का मतलब होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो फोर्स का है जो है डाइन और लेंथ का है सेंटीमीटर। सो डाइन यूनिट इज एसोसिएटेड विथ फोर्स। डाइन फोर्स का यूनिट है। कोई बोले सर हम तो पहली बार देख रहे हैं, ये तो एक्चुअली न्यूटन हम लोग पढ़ के आए, इसलिए मैं कन्वर्जन बता रहा हूं। देखो पहला क्वेश्चन अपन लोग ऐसा क्वेश्चन पूछे, 1 न्यूटन इज इक्वल टू ब्लैंक डाइन। देखो दोस्तों आज अपन लोग को ये भी पता चल जाएगा कि ये न्यूटन इतनी बड़ी हस्ती क्यों थी और न्यूटन को ग्रेट साइंटिस्ट क्यों माना जाता है। क्यों माना जाता है वो एट द एंड ऑफ द डिस्कशन, जस्ट कंसंट्रेशन। एक न्यूटन इज इक्वल टू ब्लैंक डाइन। न्यूटन सिंपली रिप्रेजेंटिंग MKS यूनिट एंड डाइन रिप्रेजेंटिंग CGS यूनिट। डोंट वरी। तो सबसे पहले डाइन में जाना तो कोई टेंशन नहीं, ऐसे न्यूमेरिकल को डायमेंशनल एनालिसिस से भी सोल्व किया जा सकता है, जो अपन लोग नेक्स्ट लेक्चर में सोल्व करेंगे। मगर मैं बता रहा हूं कि ये जो मेथड में देने जा रहा हूं मुझे इजी लग रही है। डायमेंशनल एनालिसिस वाली मेथड है वो कुछ लोगों को पता चले, कुछ लोगों को कॉम्पैक्ट थोड़ा मिक्सिंग वाला लग रहा है, इसलिए मैं ये इजी मेथड को एडॉप्ट करता हूं। तो जरा देखो 1 न्यूटन, बिंदास, न्यूटन यूनिट ऑफ फोर्स। रेडी? तो फोर्स का फॉर्मूला आपके एग्जाम में, व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स? फोर्स का फॉर्मूला है MA, फादर F इज इक्वल टू मदर मां। यू नो दैट फादर F इज इक्वल टू मदर मां। सो व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स? बिंदास में लिख रहा हूं, देखो M, व्हाट इज द यूनिट ऑफ M? kg, किलोग्राम मास। एक्सीलरेशन का यूनिट होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यूनिट ऑफ फोर्स है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 न्यूटन। ये अपना बनेगा 1 न्यूटन, क्योंकि ये MKS है ना, देखो सब MKS में। तो अब kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर को कन्वर्ट करना है CGS में, जिसको अच्छी तरह बोलेंगे डाइन। डोंट वरी। तो स्टार्ट देखो, 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू, स्टार्ट वंस अगेन, इसको टेंशन है, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर को न्यूटन ही कहा जाता है। 1 न्यूटन इज इक्वल टू kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डोंट वरी। तो अपन लोग क्या करते हैं, kg को CGS में कन्वर्ट करते हैं ना। व्हाट इज द kg? kg MKS यूनिट। I would like to convert in the form of CGS. So 1 kg is equal to 10 raised to 3 gram. वहां सामने देखते जाओ। 1 मीटर is equal to 10 raised to 2 सेंटीमीटर अपॉन सेकंड के लिए तो बिंदा सेकंड में रहना है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू 10 raised to 3, 10 raised to 2, that means 10 raised to 5 ग्राम, इधर से ग्राम आया, सेंटीमीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। यू कैन सी ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो 10 raised to 5, 10 raised to 5, what is this kg meter per second square? kg meter second square, all are MKS. and in MKS system what is the unit of force? न्यूटन। तो इसको अपन लोग लिखेंगे 1 न्यूटन। तो what is the G? ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस all simply representing CGS unit. But in CGS you can see that what is the unit of force? In CGS system the unit of force is represented by word like dyna. तो अपन लोग ये पूरा जमेला है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, उसकी जगह लिख देते हैं डायना। तो आंसर क्या हुआ? 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 raised to 5 डायना। ये रिलेशनशिप धूम मचाएगा, मोस्ट IMP। 1 न्यूटन is equal to 10 raised to 5 dyna. Just analyze and then we'll discuss why Newton is the greatest. Okay, so काफी लोगों को ना समझ में आया तो वापस देखो, न्यूटन है वो MKS है, डाइन है वो CGS यूनिट है। आपको ऐसे न्यूटन, डाइन, डेंजर वर्ड में ना पता चले तो सिंपल बेसिक यूनिट्स में चले जाओ।
तो मैंने क्या किया, देखो पहले फादर ए फिजिकल मदर माँ, ये फॉर्मूला थ्रू हमने जिसे कह सकते केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया। कोई बोले हमें सर ऐसा फॉर्मूला ना आता हो तो डायमेंशनल फॉर्मूला फोर्स का याद हो तो भी चले, m1 l1 t-2, m1 यानी केजी, l यानी मीटर और t सेकंड स्क्वायर हो जाएगा डिनोमिनेटर देख पे, तो भी आप फाइंड कर सकते हो, डोंट वरी। तो मैंने सिंपल न्यूटन फ्यूटन में इंटरेस्ट नहीं लिया, मैंने सिंपल केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। ऐसे कोई भी न्यूमेरिकल में पहले बेसिक जो एमके से मीटर केजी और सेकंड में आ गए। अब मीटर केजी और सेकंड को तो हम बिंदास सीजीएस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, केजी को ग्राम में कन्वर्ट कर दिया, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया, सेकंड तो अपना दोस्त है उसको तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। और इसका सिंप्लीफिकेशन दो तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर आया। तो ये जो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर एमकेएस यूनिट है, तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर सीजीएस यूनिट है। केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर फोर्स का एमकेएस यूनिट, मगर फोर्स का एमकेएस यूनिट न्यूटन भी है, तो इसकी जगह हमने रख दिया न्यूटन। इसी तरह ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर फोर्स का सीजीएस यूनिट, तो फोर्स का सीजीएस यूनिट डाइन भी है, तो ये झमेला उसकी जगह रख दिया डाइन। तो 1 न्यूटन 10⁵ डाइन। अब न्यूटन क्यों इतना जोरदार साइंटिस्ट था, क्योंकि 1 न्यूटन कितनी डायन यू कैन सी डायन, तो 1 न्यूटन 10⁵ डायन के बराबर था। अब काफी लोगों से एक डायन नहीं समझी जाती, इधर 10⁵ डायन, यू मैं मजाक बोल रहा हूँ, डायन नहीं डायन इट इज डोंट, मगर डायन आप समझ गए। तो डायन वर्ड आप अच्छी तरह जानते हो। एक भाई थे, वो ऐसे रोड पे जा रहे थे और बिंदास बीड़ी पीते हुए जा रहे थे बिंदास, और रात के 12-2 बजे थे, और सडनली उसके सामने ऐसी चुड़ैल आ गई। चुड़ैल डायन यू नो दैट, काफ़ी लोग इसको ये वर्ड को जानते हैं। और चुड़ैल है, कुछ लोग कहते हैं उसके पैर ऐसे मुड़े होते हैं, नेन वन लंबे लंबे नाखून ने दांतों नेन वन, ये तो डराने लगे, ऐसे घुघराले बाल। ये बंदा तो ऐसे बिंदास बीड़ी पीते हुए जा रहा था, तो डायन हाँ यही करने लगे कि डर, मैं चुड़ैल हूँ, मैं खा जाऊंगी नेन वन। तो अब ये बंदा बीड़ी पीते हुए आगे बढ़ रहा था। थोड़ी देर ऐसा हुआ, डायन को पसीना आ गया कि ऐसा डरता क्यों नहीं। तो चुड़ैल ने बोला मैं चुड़ैल हूँ, मैं तेरा खून पी जाऊंगी, तू मुझसे डरता क्यों नहीं। ओ भाई बीड़ी पीते हुए आगे बढ़ते बोले कि मेरी शादी हुई है 5 साल हुए, ऐसा करके वो आगे चला गया। ना फ्रेंड्स यू नो दैट वीडियो, दिस इज ओनली फॉर यू कैन सी दैट एंटरटेन पॉइंट ऑफ व्यू। बाकी जो समझ गए होंगे उसको पता चला, मगर न्यूटन क्यों साइंटिस्ट ग्रेट था वो पता चल गया, क्योंकि उसने ग्रेविटेशन फाइंड किया था। बाकी तो 10⁵ डाइन, तो ये अपने पास बेस्ट रिलेशनशिप आ गया। अब अपन लोग ये सोल्व करते क्वेश्चन 1 न्यूटन 10⁵ डाइन। इसके ऊपर से मैं एक और ये क्वेश्चन को थोड़ी देर के लिए अब इधर ही रख देते हैं। अब इसमें मैं एक ऐसा और क्वेश्चन देता हूँ, चलो 1 न्यूटन 10⁵ डाइन ऐसा सोल्व किया। आपको मैं क्वेश्चन देता हूँ, वो आपको भी ऐसे ही सोल्व करना है, मोस्ट IMP। अब आपको 1 जूल इज इक्वल टू ब्लैंक अर्ग। अब जूल किसका यूनिट है, जूल, जूल इज द यूनिट ऑफ एनर्जी वर्क। तो एनर्जी के लिए जूल इज द MKS यूनिट, एंड ERG इट इज कॉल्ड अर्ग, इट इज द CGS यूनिट। तो 1 जूल इज इक्वल टू हाउ मेनी अर्ग। चलो ट्राई इट। तो सबसे पहले वीडियो पॉज करो और ट्राई करो, फिर मैं देखो सोल्व करवाता हूं कैसे। सबसे पहले 1 जूल, 1 जूल, जूल इज द यूनिट ऑफ एनर्जी बट इन MKS। ओके, तो सबसे पहले अपन लोग एनर्जी, एनर्जी का आपको डायमेंशनल फॉर्मूला पता होना चाहिए, इट इज m1 l2 t-2। कोई बोले ऐसा कुछ याद नहीं आता है, कोई बोले मैं तो सर आज पहली बार लेक्चर देख रहा हूँ, खाक पता चलेगा, नो प्रॉब्लम। एनर्जी का दूसरा मतलब होता है वर्क डन, और वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का तो फॉर्मूला भी लिखा ना, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डिस्टेंस का वापस मीटर आए, सो व्हाट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, केजी मीटर 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 स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। ये आपका बन गया केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर फॉर्मूला, बट इन टर्म्स ऑफ MKS। देखो MKS में ना केजी मीटर, अब इसको कन्वर्ट कर दो CGS में, तो स्टार्ट। तो चलो 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर को कन्वर्ट करते केजी,
केजी 1 kg, केजी का क्या होगा 10⁻³ ग्राम मीटर, उसके पावर 1 देखो। अब मीटर 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻² सेंटीमीटर, मगर मीटर के ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर, सेकंड तो अपना यार है तो सेकंड का स्क्वायर, सेकंड का स्क्वायर। अब देखो 10⁻³ 10⁻², मगर हरीडली आगे बढ़ना मत, इधर स्क्वायर है तो 10⁻², 4 और सेंटीमीटर का स्क्वायर कर दो। अब इसको सोल्व करो तो 10⁻³ 10⁻4 यानी 10⁻7 ग्राम, इधर से आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, डिनोमिनेटर में सेकंड स्क्वायर, तो 1 kg मीटर स्क्वायर प्लस सेकंड स्क्वायर इतना आया। तो kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर को अच्छी लैंग्वेज में क्या कहते हैं, जूल। तो 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7, और ये सीजीएस को ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर सीजीएस है, तो सीजीएस में एनर्जी का यूनिट है अर्ग, तो इधर लिख देते हैं अर्ग। तो व्हाट इज द आंसर, 1 जूल 10⁻7 अर्ग। मोस्ट आईएमपी इसके बड़े पैमाने पे यूज होने वाले हैं, आपको ये सब ट्राई करने का, ये दोनों क्वेश्चन खास याद रखना, 1 न्यूटन 10⁻5 डाइन, 1 जूल 10⁻7 अर्ग। अब दोस्तों इसको सोल्व करते हैं। 1 ये मैंने देखो ये मेथड, ये सब कुछ अपन लोग डायमेंशनल एनालिसिस से भी कर सकते हैं, मगर मुझे बहुत इजी ये लग रहा है, तो ऐसे सोल्व करने के क्वेश्चन में लास्ट में आपको होमवर्क में देता हूँ जो आपको ट्राई करना है। ये सेशन जोरदार है, इसमें काफ़ी सारे अच्छे क्वेश्चन है, वो पूछते हैं ऑलरेडी जेईई नीट में। तो अपन लोग ये सोल्व करते हैं, सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड इज 79/cm, ये सीजीएस में है, इसका एमकेएस में आंसर लाना है। तो स्टार्ट, 79 पर सेंटीमीटर, ओके 70 का 70, डाइन सीजीएस उसको कन्वर्ट करना है एमकेएस, तो डाइन का एमकेएस अब आपको पता चला 1 न्यूटन 10⁵ डाइन, अभी रिसेंटली डिराइव किया, तो डाइन को इधर रखते 10⁵ को धक्का लगा दो तो 10⁵ इस साइड आएगा तो -5 हो जाए, सो 1 डाइन इज इक्वल टू 10⁻⁻5 न्यूटन। तो ये रहा डाइन, 1 डाइन की जगह में लिख दूं 10⁻⁻5 न्यूटन। अब आता है डिनोमिनेटर में सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर, 10⁻² मीटर। तो देखो डाइन पर सेंटीमीटर किस में कन्वर्ट होगा, न्यूटन पर मीटर। तो इसको सोल्व करें, 70 10⁻⁻5, ये 10⁻² गुलाटी मार के ऊपर तो +2 न्यूटन पर मीटर, तो 70 -5 +2 यानी 10⁻³ यानी 7 × 10⁻² न्यूटन मीटर, यानी कि 0.07 न्यूटन मीटर। दिस इज यू कैन सी दैट योर आंसर, अगर ये आंसर दिया हुआ है नो प्रॉब्लम। सो यू कैन सी बेस्ट क्वेश्चन वी हैव डिस्कस, ऐसा क्वेश्चन मैं होमवर्क में दे रहा हूँ जो आपको ट्राई करना है, बराबर। जिसको समझ में ना आए वो असिस्टेंट सर दक्षेश सर को बोल के पूछे कि मुझे ये टॉपिक में प्रॉब्लम है, डोंट वरी वी विल डिस्कस अगेन। तो जो स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया वो रजिस्ट्रेशन के लिए दक्षेश सर का कांटेक्ट करें, या फिर जिसे कह सकते हैं कि वेबसाइट थ्रू कांटेक्ट करें, नो डाउट अबाउट इट। सबसे पहले अपन लोग को मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, होमवर्क में ट्राई करना है, ओके अच्छी तरह देखना। सरफेस टेंशन इज 70 अर्ग पर सेंटीमीटर स्क्वायर, देखा कल्टी मारी मैंने, अर्ग अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर, ERG अर्ग। अब आप अर्ग को अच्छी तरह जानते हो, इफ सरफेस टेंशन इज 70 अर्ग पर सेंटीमीटर स्क्वायर इन CGS then find its value in MKS। आपको ट्राई करना है, ये होमवर्क में मस्त क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सो जस्ट ट्राई टू सॉल्व इट। बेहतरीन क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है, सो जस्ट एनालाइज इट एंड ट्राई टू सॉल्व इट। रेडी? अब आपको मैं एक दो और क्वेश्चन की तरफ ले जाता हूँ, ये आपको होमवर्क में दिया है। अब हर एक बंदा है वो जरा देखे, क्योंकि अब मैं जो क्वेश्चन सोल्व करवाने वाला हूँ वो थोड़े टिपिकल है और हटके है, इसलिए
आप भी जरा जिसे कह सकते हैं कि हटके लेवल पे आ जाना, क्योंकि जैसे तैसे वो ये समझ में नहीं आता है। इसलिए देखो सभी टॉपिक्स अपने होते ऐसा नहीं होता है, कुछ अपने नहीं होते, यू नो दैट। तो कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो इजी नहीं होते, और सब कुछ इजी होता तो स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स मीडियम स्टूडेंट्स का कोई डिफरेंस जनरेट नहीं होता। तो यहाँ पे थोड़ा आपका दिमाग तेज तरह चलाना है, और मैं जो वर्ड्स कह रहा हूँ उसको पकड़ना अच्छी तरह। मैंने जो बेस बना दिया, पहले अपन लोग ने 40-50 मिनट बेसिक प्रैक्टिस की, अब ये प्रैक्टिस का फायदा आपको मिलने वाला है जो क्वेश्चंस अपर सेगमेंट में आ सके। तो मैं एक ऐसा क्वेश्चन सोल्व करवाता हूँ। ये लोग कैसे क्वेश्चन पूछेंगे जरा देखो, टेंशन रखे बिना पढ़ोगे और समझ के करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। काफी स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चन में लोचे मारते हैं। देखो मैं क्वेश्चन सोल्व करवाता हूँ। इफ द प्रेजेंट यूनिट ऑफ लेंथ, इफ प्रेजेंट यूनिट, अभी का बात बता रहे, यूनिट ऑफ लेंथ, टाइम एंड मास, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, इफ प्रेजेंट यूनिट ऑफ लेंथ, टाइम एंड मास, प्रेजेंट यूनिट ऑफ लेंथ, टाइम एंड मास आर चेंज्ड, अभी जो यूनिट है वो चेंज कर देते, आर चेंज्ड टू, अभी जो यूनिट है क्या, लेंथ का मीटर, टाइम का सेकंड और मास का केजी, उसको चेंज कर दिया जाता है। यू कैन सी दैट चेंज्ड टू, अब 100 मीटर, देखो मीटर में से 100 मीटर कर दिया जाए, 100 सेकंड एंड 1/10 kg। देखा वापस देखो क्वेश्चन ऐसा पूछेंगे, इफ प्रेजेंट यूनिट ऑफ लेंथ, व्हाट इज द प्रेजेंट यूनिट ऑफ लेंथ, मीटर, व्हाट इज द प्रेजेंट यूनिट ऑफ टाइम, सेकंड, व्हाट इज द प्रेजेंट यूनिट ऑफ मास, केजी। उसके बदले लोग बोल रहे हैं, कोई नया बंदा आ गया फिजिक्स में, एक आध दो पेग मार के उसने पूरा सिस्टम चेंज कर दिया, वो बोले नहीं अब लेंथ को मीटर में नहीं मेजर करना है, तो अपन बोले किस में, अब लेंथ को मेजर करना है 100 मीटर में, ऐसा नहीं, मगर वो पिया हुआ है तो जो कहे मानने का। अब टाइम सेकंड में नहीं, वो कहता है 100 सेकंड में मेजर करो, मास केजी में नहीं, वो कहता है 1/10 केजी में मेजर करो। अगर अब लेंथ, टाइम और मास का ये यूनिट के बदले ये यूनिट्स लिए जाए तो पहला क्वेश्चन पूछा है, देन न्यू यूनिट ऑफ फोर्स, देन फाइंड न्यू यूनिट ऑफ फोर्स। चलो एक मैं करवाता हूं, बाकी के दो आपको होमवर्क में देता हूं। ओके, सो न्यू यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स आया फोर्स, तो फोर्स का पहले तो यूनिट कर लो याद, व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स, पहले तो यूनिट ऑफ फोर्स इन एम के एस में चले जाओ, तो वो तो हम लोग जानते हैं केजी मीटर स्क्वायर, सॉरी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बोले ये आप रट्टे मार के आते हमें, अरे हमें फादर एफ इज इक्वल टू मदर माँ, दुनिया में ये दो लोग हैं तब तक कहाँ टेंशन है, फादर मदर। सो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मास का केजी, एक्सीलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर। रेडी, तो यूनिट ऑफ फोर्स अपने पास है। और ये कौन सी सिस्टम में, एमकेएस में कि सीजीएस में, कोई बोले सर मुझे वही पता नहीं चलता है, तो एमकेएस होगा तो किलोग्राम होगा, मीटर होगा, ये सब एमकेएस है, मीटर किलोग्राम, सीजीएस में सेंटीमीटर ग्राम, अगर यूनिट में किलोग्राम उठता हो, मीटर उठता हो तो एमकेएस है। अपने को इसको जिसे कह सकते हैं कि अब कन्वर्ट करना शुरू करते हैं। अब ये लोग बोलते हैं, ये जो ये वाला बंदा क्या बोल रहा है, केजी नहीं, सो न्यू यूनिट ऑफ फोर्स, न्यू यूनिट ऑफ फोर्स। चलो तो न्यू यूनिट, ये तो बेसिक अभी का प्रेजेंट यूनिट है, दिस इज द प्रेजेंट यूनिट ऑफ फोर्स। तो अपने को न्यू यूनिट फाइंड करना है ना, सो न्यू यूनिट ऑफ फोर्स, केजी की जगह क्या लेंगे, 1/10 केजी, मीटर की जगह क्या लेने का, बिंदास 100 मीटर, अपॉन सेकंड की जगह क्या लेंगे, 100 सेकंड, वो जो बोले वही करना है, जरा भी इधर उधर नहीं। ओके, तो पहले केजी को उठा के रख दो इधर, मीटर को उठा के रख दो इधर, और इधर देखो स्क्वायर है, स्क्वायर भूलना मत, तो इधर सेकंड का स्क्वायर कर दिया। अब इधर 1/10 है, इधर 100 है, और अपॉन 100 का स्क्वायर है, देखो 100 का स्क्वायर है, ये स्क्वायर भूल गए तो लोचे, वेरी इजी, जहां पे केजी था वहां पे 1/10 केजी रख दिया, जहां पे मीटर था वहां पे 100 मीटर रख दिया, जहां पे सेकंड था उसकी जगह 100 सेकंड, ये भाई बोल रहे इसलिए। अब इसको सिंप्लीफाई करें, तो इसको सिंप्लीफाई करना अगर ना आए तो लोचे, लोचे इसलिए
क्योंकि ये बहुत इजी है 10, और 100 का स्क्वायर क्या होगा, 2 बार 100 लिख देना का, कुछ पता ना चले। केजी मीटर पर सेकंड को साथ में लटकाए रखो, 100 100 कैंसिल, तो न्यू यूनिट ऑफ फोर्स क्या आएगा, सो न्यू यूनिट ऑफ फोर्स पहले क्या था, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अब क्या होगा 1/1000 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आंसर आगे देखो, दिस इज योर आंसर। तो फ्रेंड्स पता चला ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे। चलो मैं इसमें 2 होमवर्क दे रहा हूँ। अगर इफ प्रेजेंट यूनिट ऑफ लेंथ टाइम इन मास है उसको बदल के ऐसा कर दिया जाए तो आपको न्यू यूनिट ऑफ फोर्स की जगह ये 2 होमवर्क में फाइंड करना है। ऑब्टेन न्यू यूनिट ऑफ एनर्जी एंड न्यू यूनिट ऑफ प्रेशर। कोई बोले एनर्जी का यूनिट तो मैं आज आपने सिखाया तो पता चल जाएगा, प्रेशर का कैसे पता चलेगा, तो प्रेशर का फॉर्मूला याद होना चाहिए, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स का क्या होता है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एरिया का क्या होगा, मीटर स्क्वायर, मीटर मीटर धीरे से कैंसिल, तो क्या होगा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दिस इज द यूनिट ऑफ प्रेशर। तो सबके प्रेशर एनर्जी की यूनिट्स आपके पास है, ट्राई करना। So friends, today we have discussed very important points. Just analyze it and then we'll think about next. तो प्रेशर का देखो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, एनर्जी का है, तो आपको ये होमवर्क में करना है। ऐसे क्वेश्चन ये लोग पूछेंगे। अब मैं आपको एक लास्ट क्वेश्चन करवाता हूँ जो मोस्ट टाइम की है, और मैं डेफिनेटली ऐसे क्वेश्चन है वो नेक्स्ट एग्जाम है अपना ट्यूसडे, उसमें पूछूंगा आज, तो बी अलर्ट। अब अपन लोग को मैं क्वेश्चन देता हूँ, आप ट्राई करो वीडियो पॉज करके, क्योंकि ये बहुत ही आईएमपी है। सो इफ क्वेश्चन स्टार्ट, इफ 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड, 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड, कभी कभार आपको पर सेकंड ऐसे देंगे तो कुछ लोग डर जाते हैं, सेकंड इनवर्स, डोंट वरी, इसका मतलब है पर सेकंड। इफ 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड is equal to x newton into second, is equal to x newton into second, then x is equal to blank, तो x की वैल्यू फाइंड करने की है। चलो वीडियो पॉज करो, मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन काफी जगह पूछा हुआ, तो वीडियो पॉज करके आपने ट्राई की होगी। अब मैं जिसे कह सकते हैं कि इसको सोल्व करवाता हूँ बिंदास। सबसे पहले देखो, इधर न्यूटन है, इधर सेकंड है, इधर है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड, तो ग्राम सेंटीमीटर सेकंड किस तरफ ले जाता है, कौन सा यूनिट है, ऑब्वियसली सीजीएस, और इधर है न्यूटन, वो कौन सा यूनिट है, एमकेएस। तो सबसे पहले तो वेवलेंथ ही मैच नहीं हो रही, वेवलेंथ यानी सेटिंग नहीं हो रही, इधर एमकेएस इधर सीजीएस, और अपने को इधर पहले जिसे कह सकते हैं सीजीएस में से एमकेएस में जाना पड़ेगा, या फिर जिसे कह सकते हैं कि कैसे जाए, तो पहले देखो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड है, और न्यूटन, न्यूटन किसका यूनिट है, फोर्स, तो अपन लोग तो फोर्स का बेसिक यूनिट जानते हैं एमकेएस में, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, देखो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फ्रेंड इधर केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर ला दे तो केस फाइल हो जाए। तो इधर देखो ग्राम, इधर अपने को पहले तो मैं बेसिक समझा रहा हूँ, बाकी तो बहुत इजी मेथड में भी लोगों को एक्चुअली न्यूटन और सीजीएस, तो अपन लोग जानते हैं इधर सीजीएस यूनिट लाना हो, तो फोर्स का सीजीएस यूनिट क्या होगा, चेक इट, चलो फोर्स का यूनिट होगा ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये सीजीएस यूनिट होगा। इधर तो एमकेएस है, इधर सीजीएस लाना है, मगर सीजीएस यूनिट होता है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इधर देखो ग्राम है, सेंटीमीटर है, सेकंड भी है, मगर सेकंड स्क्वायर चाहिए, तो मैं कुछ ऐसी छेड़खानी करता हूँ, क्या किया, सेकंड से मल्टीप्लाई किया, सेकंड से डिवाइड किया, इज इक्वल टू एक्स इंटू न्यूटन इंटू सेकंड। रेडी, कोई बोले ब्रैकेट में क्यों रखा है, अलग रखे इसके, बाकी कुछ नहीं। अब ये जरा चेक करो, ये ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ फोर्स, मगर ये कौन सा यूनिट है, सीजीएस, मगर फोर्स का सीजीएस दूसरा यूनिट भी आज हमने डिस्कस किया, डायन, यू नो दैट, डाइन, तो इसकी जगह 1, देखो मैं चेंज करता हूँ 1, ये जो पूरा जमेला है उसकी जगह क्या लिखेंगे अपन लोग, डाइन, सो 1 डाइन इंटू सेकंड एक्स न्यूटन इंटू सेकंड, तो सेकंड सेकंड कैंसिल, तो अब डाइन, एक डाइन कितने न्यूटन के बराबर होगा, तो अपन लोग तो 1 न्यूटन जानते हैं, 1 न्यूटन 10⁵ डाइन,
तो 1 डाइन इज इक्वल टू हाउ मेनी 10⁻⁻5 न्यूटन हो जाए ना, ये -5 को इससे भेज दिया, तो इधर 1 डाइन की जगह रख देंगे 10⁻⁻5 न्यूटन। 1 डाइन देखो ये रहा ना, 1 डाइन इज इक्वल टू 10⁻⁻5 न्यूटन इज इक्वल टू x इंटू न्यूटन। सेकंड को तो हमने अलविदा कह दिया, अब न्यूटन न्यूटन को भी अलविदा कर दो तो x क्या बचेगा 10⁻⁻5। वेरी इजी, मगर मस्त क्वेश्चन है, जस्ट एनालाइज इट। सो फ्रेंड्स, इन दिस वे टुडे वी हैव कवर्ड सुप्रीम टॉपिक्स, मगर अभी इसमें और डिटेल स्टडी करने वाले हैं। सो पार्ट 8 वापस इंटरेस्टिंग बनेगा और मैं डायमेंशनल एनालिसिस से भी ये आपको समझाऊंगा। तो जितने क्वेश्चंस आज हमने कवर किए सब प्रैक्टिस वापस करो, बहुत सारे क्वेश्चंस को कवर किए, होमवर्क में दिया वो वापस करो, एंड बी रेडी फॉर द नेक्स्ट पार्ट। थैंक्स।